Good afternoon, everyone. COE STM Kolkata welcomes all the participants for today's Regional Distance Learning Seminar session. Today's topic is Step-Up Adherence Counseling, and the speaker is Dr. Nivedita Datta. Dr. Nivedita Datta is presently working as the Senior Medical Officer at the Center of Excellence in HIV Care at the School of Tropical Medicine, Kolkata. She is actively involved in various HIV-related research projects and has attended conferences and published articles in international journals in the relevant field. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start the session. Ma'am, you're on mute. Ma'am, can you please unmute? Yeah, thank you, Sweta, for the introduction. Today's session is about step-up adherence counseling. Though it seems like a very common topic for discussion, time and again, we need to enhance our knowledge and our expertise with counseling, because somehow we fail to understand that ART treatment, ART package is very much incomplete without proper adherence counseling. The session objectives today is by the end of the session, we should be able to understand how what is the monitoring of PLHIV on ART, adherence monitoring, and management of PLHIV with unsuppressed viral load, including enhanced adherence counseling. Now, the objectives of monitoring during follow-up visit. What usually happens is we evaluate patients' response to ART, we evaluate patients for new clinical events. But the third part, a very important and vital part, we forget to understand, that is the adherence monitoring. Basically, it occupies more than 1/3 of the ART program. So if we are not going through that, logic outcome, immunologic outcome, and clinical outcome. So my first two objectives are hampered if my third objective is not perfect. We really need to understand just by giving pills to the patient is not enough. Just by asking them to have their medicine, it's not enough. We also have to understand their gaps, their flaws, where they are going wrong, and how to solve these issues. So evaluation, as I said, I'll repeat, it's virological, it's immunological, clinical. That's a clinical part of it. And we have the adverse drug reactions, opportunistic infections, IRIS, as we call it, immune reconstruction. And then we have the adherence monitoring. Now, the parameters for monitoring after ART initiation, we have basic 4 parameters. One is the response to therapy, one is the IRIS or the OIs, one is the adverse drug reactions, and the adherence monitoring. Now, coming to adherence monitoring, if we look very closely, we will find that the response to treatment is basically the signs and the monitoring. If we measure them, the clinical and immunological improvement is weighted by the staging. Viral suppression we see by its monitoring is by the drug adherence. Improvement in the quality of life, CD4, and the viral load. These are the monitoring things as we can do it. So coming to basic the parameters, if we are talking about the left-hand side column of the parameters, then the basic thing is the adherence monitoring. It affects all the other parameters. A person cannot be clinically and immunologically well if his adherence is not good. OIs and IRIS will crop up. We will see all stage 4 and stage 3 illnesses if this adherence is not good. ADRs like the nephrotoxicity, hepatotoxicity will remain, or we will have HIVEN and other things if the adherence is not good. So to keep my above 3 rows perfect, we have to stress on adherence monitoring. Pill count during every visit, viral load monitoring at 6 months and 12 months, and yearly thereafter is very important. So we always keep talking about the response to therapy, how a patient is doing by the blood tests, how a patient is doing by the stages and the adverse reactions. But we fail to understand the one very important factor that is affecting all the others.
one sec. So adherence, if we keep an eye on adherence, it is important because a high level of sustained adherence is important because viral suppression is needed, and it improves the immunological and the clinical outcomes. It decreases the risk of developing ARV drug resistances and reduces the risk of transmitting HIV. So if I am taking my pills on time, then my virus remains suppressed because the pills do not allow the virus to replicate. As we know that we take a triple drug regimen for ARV. So a triple drug regimen, why a triple drug regimen and not a single drug? Because the virus is quite clever in terms of its mutation and its adaptation to the body. So drug in each individual drug acts at 3 points to reduce the viral load or to cut off transmission. So basically a viral replication, one second. Okay. If people want, I can mix in. My Hindi is not that good, but if Sweta insists, I'll try to mix it with Hindi and English. Yeah. So जब हम दवाई लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप दवाई लेते हो तो दवाई का जो इफेक्ट है, गुड इफेक्ट्स है, तो वायरल रेप्लिकेशन को वो सप्रेस करेगा, उसको वो दबा के रखेगा, ठीक है. सो डिक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ARV ड्रग रेजिस्टेंस ऑल्सो. What happens is when you are missing 2 or 3 pills in a week, your blood level, that is a therapeutic blood level, जो आपका ब्लड लेवल होता है दवाई का, वो घट जाता है. जब वो घट जाता है तब वो द वायरस ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ द मेडिसिन इज अटैकिंग मी. इन वेरी लेमैन टर्म्स, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, हर कोई बचना चाहता है, ठीक है, लेकिन ये तो समझना पड़ेगा, I am trying to kill the virus every day with my powerful drugs. At the same time, the viruses are trying to survive. उनको भी according to the Darwin's theory, उनको भी survive करना है, ठीक है. So if I start skipping my medicine 2 or 3 days in a week, तो वो blood level घट जाता है दवाई का, तो वायरस को ये opportunity मिल जाता है कि देखो दवाई ऐसे काम कर रहा है, so I have to bring that change in my body. तो दवाई का जो जगह है ना काम करने वाला, वो जगह पे वो कोई कॉन्फर्मेशनल चेंज कर लेता है, अपना शरीर में कोई चेंज लाता है दवाई, virus. So when the patient, suppose for a very, I'm going to a very grassroots example. Suppose I'm taking my medicine on Monday, Tuesday and Wednesday. सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मैंने दवाई लिया. Thursday and Friday I skipped my medicine. तो क्या हुआ, मेरा जो ब्लड लेवल था दवाई का वो घट गया. अब घट गया है तो इफेक्ट क्या होता है, वायरस को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि देखो वही दवाई है जो आके मुझे बार बार मारता है, और वही दवाई है जो मुझे रेप्लिकेट करना नहीं देता है. सो द वायरस वो अपने आप एक म्यूटेशन लाता है, अपने शरीर में एक चेंज लाता है. आपने दवाई तो 2 दिन स्किप कर लिया, दैट इज द थर्सडे एंड द फ्राइडे. ऑन सैटरडे यू अगेन फेल्ट लाइक टेकिंग द मेडिसिन, आपने फिर से चालू किया सैटरडे से दवाई लेना, लेकिन ये ब्लड लेवल जो शुक्रवार को आपका ड्रॉप किया था ना, कर गया था, तो वो that gives the virus an opportunity to change its own shape of the amino acid body, ठीक है. तो लास्ट में जब शनिवार को और रविवार को आपने दवाई लगातार ले लिया, लेकिन वायरस ने आपका दवाई पहचान भी लिया, द वायरस हैज रिकॉग्नाइज्ड योर मेडिसिन्स. सो द वायरस नाउ ट्राइज टू म्यूटेट, वो अपनी शरीर में एक चेंज लाता है वायरस, सो दैट योर मेडिसिन, शनिवार रविवार का जो मेडिसिन आया वो तो लगातार आते रहा, लेकिन वायरस ने भी अपनी शरीर में एक चेंज लाया. It's almost like I keep telling my patients when I counsel my patients about the adherence key. As a doctor, I'm sitting in a white coat in front of you. You can recognize me as a doctor. But the next day, if I take a disguise and I'm sitting in the same room, you will think twice before you're talking to me. तो यही होता है शरीर में कि वायरस की पहचान तो नहीं रहता है. दवाई, the medicine is going inside your body, but the medicine is unable to identify the virus. और वायरस का जो रेप्लिकेशन है वो थोड़ा थोड़ा करके चलता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द ARV ड्रग रेजिस्टेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द मोर एंड मोर the blood level fluctuation is there, the resistance keeps cropping up.
एक दो करके वायरस ने अपनी शरीर में अपीयरेंस चेंज किया। ये 2-3 अपीयरेंस जब मिल जाता है ना, कुल मिला के एक टाइम आता है जब दवाई तो रहता है लेकिन उसका असर पूरा पूरी खत्म हो जाता है, वायरस पे उसका कोई असर नहीं रहता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन ARV drug resistance. Now, as I said, a high level of sustained adherence is necessary to suppress viral replication and improve immunological and clinical outcomes. आप दवाई ठीक से लोगे तभी आपका वायरस सप्रेस रहेगा और तभी आपका CD4 भी बढ़ जाएगा और वायरल लोड का आउटकम भी अच्छा रहेगा। और यू काउंसल पेशेंट्स लाइक दैट, आपको अब ठीक रहना है ना, तंदुरुस्त रहना है ना, तो आपको ये दवाई तो लेना ही है। And one of the most important things is reduces the risk of transmitting HIV. We have lots of patients, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो हस्बैंड वाइफ में डिस्कॉर्डेंट होते हैं, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। फॉर दोज केसेस द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस बाय द कॉन्जुगल रूट इज वेरी कॉमन। हर वक्त तो कोई कॉन्डोम यूज नहीं करता है, एंड इफ स्पेशली दे आर प्लानिंग अ बेबी और अ चाइल्ड, तो कॉन्डोम तो यूज नहीं करते। बट ट्रांसमिशन यू कैन कट इट ऑफ, फिर भी इन्फेक्शन आप कम कर सकते हैं। वो जो नेगेटिव स्पाउस है उसमें कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एडहेरेंस है, इफ यू आर टेकिंग योर पिल्स ऑन टाइम, आप अगर आपका दवाई ठीक लेते हैं तो हस्बैंड वाइफ जब वो विदाउट कॉन्डोम कॉन्जुगल लाइफ मेंटेन करते हैं ना, तब भी आपका ट्रांसमिशन कम ही होता है। So adherence should be assessed and routinely reinforced by everyone in the HIV care team at each of the patient's visit to the ART center. अभी ये सिर्फ डॉक्टर का काम भी नहीं है, सिर्फ काउंसलर का भी काम नहीं है। Adherence is something that should be emphasized. वो हर किसी को बताना है। ART सेंटर में जो केयर कोऑर्डिनेटर है, वहां से शुरू होके काउंसलर, नर्स सिस्टर, डॉक्टर, इवन द फार्मासिस्ट, एवरीवन हैज टू रीइंफोर्स कि आपको दवाई जो हम देते हैं ना, वो आपको लेना है। और जब तक हम दवाई का वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि क्यों हर रोज लेना है, तो पेशेंट्स दवाई नहीं लेंगे। ये हमको समझना है। लाइक वी कीप ऑन ब्लेमिंग द पेशेंट्स, दवाई क्यों नहीं लिया, डांट दिया हमने, नहीं, दैट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। फर्स्टली इंपॉर्टेंस ऑफ ART नीड टू बी एम्फसाइज्ड। आपको ये उनको बताना है कि ART हर रोज क्यों चाहिए आपको। HIV इन्फेक्शन तो हुआ है। अभी पेशेंट्स बहुत सारे टाइम्स ये कहते हैं, लाइक व्हेन वी क्वेश्चन पेशेंट्स की दवाई तो नहीं लिया आपने, आपने तो गलत कर दिया काम, तो पेशेंट्स कहते हैं हमने कहाँ कुछ गलत किया, हम तो अच्छे ही है ना, तो प्रॉब्लम क्या है आपको। तो ये बात आपको उनको समझाना है कि प्रॉब्लम जो है वो दवाई लेने के 2-3 दिन, 2 या 3 दिन बाद नहीं होता है। जो भी प्रॉब्लम्स अराइज करेंगे ना, वो अराइज करेंगे आफ्टर 12 months, after 36 months, if the patient is lucky after 2 to 3 years. So ये जो असर है वो तो एक बुरा असर तो पड़ेगा शरीर के ऊपर, लेकिन उसका ऐसा नहीं कि आज दवाई नहीं खाया तो कल असर दिखेगा, ये ऐसा दवाई है नहीं। And studies indicate that more than 95% of adherence is required for optimal viral load suppression. Lesser degree of adherence is often associated with virological failure. तो पेशेंट्स को हमें समझाना है कि 95% adherence is needed. So what is meant by 95? Like we have all our patients on first line now, they are on TLD regimen. So how many tablets at the most is allowable? That is 1.5 tablet, 1.5. So 1.5 तो कोई लेता नहीं है। तो basically to maintain 95% adherence, more than 95, the patient can skip at the most 1 tablet in 30 days. और उनका बीडी वाला कोई डोज होगा, दो टाइम का कोई डोज होगा, तो 3 tablets in a month. So हमें समझाना होगा पेशेंट्स को, बेस्ट इज 100% एडहेरेंस, ऑलवेज बेस्ट इज 100%। उसके आगे जाके अगर वो भूलते हैं तो भी महीने में एक बार, अगर दिन में एक बार का टैबलेट है तो, और दिन में 2 बार का टैबलेट है तो महीने में 3 tablets only, that is the maximum that is allowable. So checklist to be used for identifying treatment adherence. जब हम पेशेंट्स देखते हैं, काउंसलर्स और सिस्टर और फिजिशियंस, क्या क्या देखना है, लाइक
you should have an eye for suspicion. आपको भी शक्की होना है कि कौन कौन सा पेशेंट है जो दवाई मिस करते हैं। एआरटी सेंटर्स में बहुत पुराने काउंसलर्स है, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो उनको एक शक का वो जो रखना है, कि एक आई रखना है, आंखें रखनी है कि which are the patients that have the tendency to have a gap in adherence, which are the patients who may falter with their medicines. So on time pill pickup is one lead. ऑन टाइम जो डेट पे आते हैं ना, वो अक्सर दवाई ठीक से खाते हैं। जो डेट पे नहीं आते हैं, बार बार डेट मिस करते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर बेसिक faithfulness to the service, to the program is poor. So on time pill pickup is important, but here also you have a clause. There are patients who come for on time pill pickup, but they do not bring their medicine bottles. So these are the patients, they basically वो तो आपसे तो थोड़ा like they are playing with your trust. Okay, तो एक दो बार you can allow them, but it is not to be practiced. Many centers do not see the bottles in the patient's hands. They just ask the patient कितना दवाई है आपके पास। तो कितना दवाई आप जब बताते हैं, आप देखते तो नहीं है डब्बा, तो पेशेंट्स जो भी मन मर्जी बोल देते हैं। आपको दवाई का डब्बा देखना है। सॉरी। And now comes the number of doses missed since the last visit. The counselors have to ask specifically that how many medicines have you missed. But will you be asking, suppose you have given medicine for 2 months, 2 महीने का आपने दवाई दिया है, आपका प्रश्न कैसे होगा कि आपने लास्ट 60 days में क्या क्या दवाई मिस किया है, आप गिन गिन के याद करके बताइए। नो, दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्वेश्चन। आपको ये प्रश्न करना है, आप यू हैव टू आस्क दैट how many medicines did you miss in the last 4 to 5 days? Okay, because we do not, it's not possible. It's not possible for me as a physician, neither is it possible for a healthcare worker to remember how many pills she has missed if she is taking a medicine regularly in the last 2 months. Last 2 महीने का तो कोई याद करके ठीक से नहीं बताएगा. What you can assess is a patient who has taken medicines properly for the last 4 to 5 days, that is that's the week that has passed. In that case, the patients can tell you with proper memory recall. वो याद करके ठीक ठीक आप सुनना चाहते हैं, तो last 4 to 5 days is enough. Whether the doses are taken at correct time interval, ये भी पूछना है, क्योंकि like the medicines like Zidovudin and Lamivudin combinations ZL, they have to be taken twice daily. लेकिन ये ट्वाइस डेली का मतलब ये तो नहीं है कि दोपहर में एक ले लिया और शाम को एक ले लिया. वी हैव सीन पेशेंट्स टेकिंग मेडिसिन लाइक दैट. सो इफ यू हैव अ करेक्ट इंटरवल दैट हैज टू बी मेंटेन. 12 घंटे का इंटरवल है, हाँ ठीक है, आज हमने हम कहीं गए थे, 12 घंटा नहीं हो पाया, इट्स 11.5 hours or at the most 11 hours, because I have to educate my patient. That is very important. 12 घंटे क्यों बताया? क्योंकि the blood level of the drug starts falling by 12 to 13 hours. So if you are taking a top-up pill at 12 hours, so blood level doesn't fall. Therapeutic blood level. Therapeutic blood level is a term which is used in pharmacology. It's a very important term. कि दवाई शरीर में होना काफी नहीं है, वो जो दवाई का ब्लड लेवल जो मार सके वो इम्पोर्टेंट है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आपके पास बंदूक होना इनफ नहीं है, यू हैव टू हैव उनके अंदर तो गोली रहना चाहिए. ठीक है. सो रीजंस फॉर मिसिंग, इनकरेक्ट डोजिंग, नॉन एडहेरेंस. सो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द चेकलिस्ट एट द 4th level, यू हैव टू आस्क फॉर द रीजंस. डांटना नहीं है, यू हैव टू आस्क देम. बी वेरी एम्पैथेटिक विथ योर पेशेंट्स. उनको काफी सारे प्रॉब्लम होते हैं घर में, काम की जगह पे, फाइनेंशियली, सोशली बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं. तो आपको अगर प्रॉब्लम ठीक से मालूम करना है तो डांटना नहीं है. ठीक है. हाँ, डांटना तो लाइक व्हेन यू हैव अ वेरी क्राउडेड एआरटी सेंटर, sometimes we do have impatient at spells, but we really have to understand कि missing, incorrect dosing, non-adherence may be related to some other issues. So we can talk to the patient. आप बात करते करते ना शायद वो इशू आप ही सॉल्व कर दो. ठीक है. तो टाइमिंग एंड द डोजेज ऑफ कॉन्करेंट मेडिकेशंस.
That is also important because patients are not only having ART, they are also having hypertension medicines for blood sugar, and other ailments. So the timing is also very important. Suppose I have told one of my patients, one day I told one of my patients, do not take calcium with dolutegravir. Okay. And the next day he went to a nephrologist. वहां पे वो nephrologist ने उनको कैल्शियम दे दिया दिन में 2 बार. तो वो बंदा ढूंढना, लाइक ही वाज वेरी थॉटफुल कि 2 बार कैल्शियम लेंगे तो डॉल्टोग्रेविर कब लेंगे. तो उन्होंने तो एआरटी का दवाई 2 दिन स्किप ही कर लिया, सिर्फ कैल्शियम ही उन्होंने खाया. और कुछ दिन बाद वो आके मुझे कहा कि लकीली ही केम बैक टू मी 3 to 4 days, बाय 3 to 4 days, एंड ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि हम कैल्शियम खाएंगे, आपने तो कहा था कि कैल्शियम खाने के साथ डॉल्टोग्रेविर नहीं खाना है. तो मैंने एआरटी छोड़ दिया. That is important. We have to counsel the patient ki, okay, your concurrent medications will also go. So you have to space out the timing. You can ask the patient to take one calcium at around 7 o'clock in the morning, another calcium tablet around 5 o'clock in the evening, so that you have a gap of around 6 hours before taking dolutegravir. So now coming to the reasons for missing, incorrect dosing and non-adherence, here we have to understand that a patient's non-adherence is related to basically his social issues. These issues need our kind attention also. बहुत ध्यान से सुनना है. Like sometimes we forget to listen to the patients. Okay. So these are the checklists for the treatment adherence. And if we follow the checklist with a bit of empathy, I'm sure that all of us can correct adherence gaps. Now, adherence calculation is very easy. As we know, we have calculators also, but the numerator, ऊपर में क्या है numerator and नीचे में denominator है. ठीक है. तो ऊपर है जितना टैबलेट उन्होंने लिया है पेशेंट, और नीचे जो है वो है पेशेंट को कितना लेना था. And that's a very easy percentage. Okay. Suppose a patient has missed 5 pills in a month and he has come back to you. आपने उनको दिया था तो 30, लेकिन उन्होंने खाया 25, तो 25/30 into 100 is the adherence. In other words, number of pills given to the client, that is 30, minus the number of pills balanced in the bottle, that is 5, that comes to 25, divided by the number of pills the client should have taken, that is 30. So adherence calculation is easy, provided you really look into the bottle the patient is carrying, provided you listen to him properly. काफी सारे पेशेंट्स मुंह से बोल देते हैं ये 2 है वो 1 है, और counselors or the team of ART members, they are just note it down. That is not enough. You really have to peep into the bottle. Now coming to the viral load monitoring, this is a testing algorithm we have. We know it, all of us we know, because we have been going through multiple trainings and all. So if we have a new patient, we do viral load at 6 months after initiation. नई पेशेंट्स के लिए 6 महीने के बाद वायरल लोड करते हैं हम. उसके आगे जाके साल भर में एक करते हैं. फॉर सेकेंड लाइन एंड द थर्ड लाइन पेशेंट्स हम वायरल लोड करते हैं एवरी 6 महीने में. सो वायरल लोड हैज टू बी डन फॉर ऑल पेशेंट्स, और उसके साथ साल भर में एक CD4 भी करना है. नाउ इफ द वायरल लोड इज सप्रेस, दैट इज लेस देन 1000 कॉपीज, 1000 से कम है, तो we will encourage the patient to take the same ART and with routine monitoring test. Other tests जो भी करना है, CBC, LFT, ये सब तो करेंगे, और patients will continue the same ART regimen. Now, something happens is, I have seen that, we have all seen that patients hardly understand what is viral load testing. तो ये खून जांच करने के टाइम, it's very useful that the lab technician also helps in making the patient aware कि ये खून जांच से आपके शरीर में जो वायरस घूम रहा है उसका एक माप हम करना चाहते हैं. पूरा शरीर का तो माप हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना वो 5 ml ब्लड हमने ड्रॉ कर लिया ना, उसमें कितना वायरस है ये तो एक एस्टिमेट आ जाता है. ठीक है. लेकिन ये टेस्ट का रिपोर्ट अच्छा है report is a very mischievous term, because lots of patients start thinking I'm cured, but people are not cured. Your virus is under a
डिटेक्टेबल बेसिकली TND एक रिपोर्ट होता है हमारा, दैट इज टारगेट नॉट डिटेक्टेड, दैट इज अ गुड रिपोर्ट बिकॉज द मशीन कुड नॉट काउंट एनी वायरल लोड. On the other hand, if it is between 0 to, if it was between 1 to 1000, less than 1000, then I can say that the viral load is, it's showing, but ये कम है. पेशेंट्स को encourage करना है कि आप सेम ART लो, और with in better adherence, जो एक दो पिल वो मिस करते हैं ना, like we talk about 95%, so एक दो करके जो पिल्स मिस करते हैं पेशेंट्स, that is basically not good. व्हाट हैपेंस इज, ये एक दो मिस करने से ना, ये जो कम कम वायरल लोड है, ऐसा रिपोर्ट आता है. और ये रिपोर्ट अच्छा नहीं है, बिकॉज यू सी most of your virus may not be multiplying, but a group of viruses are continuously multiplying. The multiplication rate is low, but it is there. ये समझना है कि वायरस जो है वो तो बढ़ रहे हैं, उतना नहीं बढ़ रहा है कि शरीर को खराब कर दे या सिक कर दे पेशेंट को, लेकिन वो बढ़ रहे हैं. अभी वो सस्टेन जो वायरल लोड होगा ना, लो वायरल वायरीमिया, उससे क्या होगा, ये वायरस गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी, एज आई सेड बिफोर, टू आइडेंटिफाई योर मेडिसिन. ये जो कम कम वायरस है ना, 700 800 600 वाले, ये वायरस को तो दिखता है कौन सा मेडिसिन आके मुझे मार रहा है, और वो देखने के बाद ये वायरस क्या करता है, वो मेडिसिन को वो पहचान जाता है, and then the virus brings out a magical change in its own shape and size. तो वायरस अपने अपने शरीर में कुछ चेंजेस लाते हैं, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं. ठीक है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो जो अमाइनो एसिड्स का जेनेटिक जेनोम में, तो उनके जो शरीर का जो प्रोटीन है ना वायरस का, उसका जो कॉन्फर्मेशन है, उसका जो क्या कहे, बेसिक स्ट्रक्चरल जो बातें हैं वो चेंज कर लेते हैं. So this low viremia at the length of a few months is not good, because it keeps on increasing, and while it is increasing, the mutations crop up. What is mutation? दवाई तो है, लेकिन उसका असर थोड़ा थोड़ा करके निकल जा रहा है. So even if the medicine is being taken by the patient, after some time, the medicine stops working on the virus. And now the virus is quite clever. It starts multiplying, replicating, and it just outweighs the medicine. तो इसी को हम failure कहते हैं, that is ART failure, basically due to mutations. Now, if the viral load is more than 1000, as I spoke about less than 1000, you have to continue the ART, you have to encourage the patient. And if it is somewhere between 600 and 700, you emphasize to the patient, आपको समझाना है patients को कि ये failure तो है नहीं, लेकिन ये उतना अच्छा भी नहीं है. ठीक है, आप दवाई तो जो मिस कर रहे हो ना, दो या एक करके करके हर महीना, तो वो आपको किसी भी तरह वो बंद करना है. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड what are the issues that are contributing to this. I will share my examples. We have seen patients who are adolescents, sometimes children, students है, वो कॉलेज से आते हैं, स्कूल से आते हैं, रात को वो शायद 8 बजे 8:30 बजे सो जाते हैं टायर्ड होके. तो दवाई तो आपने क्लियरली कह दिया है कि डिनर के बाद 11 बजे या 10 बजे लेना है. तो प्रॉब्लम क्या होता है कि उस टाइम उसको इतना नींद आता है कि शायद मम्मी या कोई और थोड़ा सा खिला के उनको सुला देते हैं, लेकिन वो सुला तो देते हैं, वो भी नींद में रहता है. वो अननोइंगली और नोइंगली द चाइल्ड और द एडोलेसेंट ही मिसेस द मेडिसिन. तो दिस कैन बी अवॉइडेड. ऐसा तो नहीं है कि TLD सिर्फ रात को ही खाना है, वन टाइम मेडिसिन है. पेशेंट्स कैन टेक TLD एनी टाइम ड्यूरिंग द डे. वो सुबह खा सकते हैं, स्कूल से वापस आके जब टिफिन खाते हैं तब खा सकते हैं, शाम को जब खेल कूद के बाद घर में वापस आते हैं, थोड़ा तो बहुत कुछ खाते हैं, उस टाइम खा सकते हैं. सो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर वंस डेली मेडिसिन कि आपको ये रात को ही लेना है. ये एक थोड़ा लाइक वी हैड दिस प्रीवियस रेजिमेंट्स बिफोर हैंड, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद दोज एरर काउंसलिंग. तो ये पेशेंट्स को like they have to counsel. Twice daily medicine है, suppose a patient is not able to stay back in the evening, कोई नाइट ड्यूटी रहता है, ठीक है, तो नाइट ड्यूटी है मतलब वो सुबह 8 बजे
सपोज ही इज अ सिक्योरिटी एट एन अपार्टमेंट, तो नाइट ड्यूटी के बाद उनको घर वापस जाना है। तो घर वापस जाने के बाद वो तो नहाते हैं, कुछ खाते हैं, उसी टाइम एक दवाई वो ले लेंगे। वो शायद होगा 8:30 बजे, और रात को वो ड्यूटी आने के पहले खा लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वर्क प्लेस में डब्बा निकाल के दवाई खाना नहीं चाहते हैं। तो आपको ऐसे ही स्पेसिंग करना है कि सुबह 8:30 बजे घर पहुंचते ही वो खा लेगा, और रात को ड्यूटी में निकलने के पहले वो खा लेगा। इवन इफ द गैप इज अराउंड 11 hours, यू हैव टू अकोमोडेट दैट, यू टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मुश्किल हो रहा है। टॉक टू द पेशेंट्स, ठीक है। और वायरल लोड जो है, काउंट इफ इट इज मोर देन 1000, counselor to provide step-up adherence package to the patient for 3 months. Is the adherence in the last 3 months more than 95%? If it is yes, conduct a second viral load. दोबारा viral load करना है। और if the counselor feels after counseling that नहीं, इनका तो अभी भी वो ठीक से दवाई नहीं लेते हैं, तो वापस आपको काउंसलिंग में उनको बैक करना है। Here we have a rule, like usually we see that वो स्टेप अप काउंसलिंग जो है 3 बार करना है, 3 महीने लगातार, ठीक है। एक एक दो, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ। बट इफ यू फील दैट पेशेंट को कहीं जाना है, ये पेशेंट बार बार आना नहीं चाहता है, इन दोज केसेस यू कैन ऑल्सो डू द स्टेप अप काउंसलिंग आफ्टर 15 days। कि वो 3 महीना का जो काउंसलिंग है ना, वो 1.5 महीना में वो खत्म हो जाएगा। और आफ्टर देर के बाद आप वायरल लोड कर लेंगे। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। Another scenario is at the end of 3 months you feel कि adherence तो इसका बराबर सा खराब ही है, like it hasn't improved, तो इतना adherence के बाद भी अच्छा नहीं हुआ है। आप उनको एक दो और चांसेस दो। तो 3 महीना तो नहीं, वो आप एंट्री कर लो व्हाइट कार्ड में और ग्रीन बुक में कि एज एक्सपेक्टेड हिज एडहेरेंस हैज नॉट इम्प्रूव, तो इसीलिए हमने उनको 1 महीना और चांस दिया, 6 weeks और चांस दिया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काउंसलर, एंड ये केस टू केस बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही नियम सबके लिए लागू हो, नहीं, क्योंकि एवरी पेशेंट हैज अ डिफरेंट इशू। And now, if the viral load is less than 1000 after a repeat viral load, encourage the patient to continue the regimen with the good adherence. उनको समझाइए कि adherence अच्छा होगा तो आप अच्छे रहेंगे, ट्रांसमिशन कम होगा, आपका काम जो है आप कर सकेंगे। For children and adolescents, we try to counsel them. आपका adherence अच्छा होगा तभी ना आप हाइट में बढ़ोगे, तभी ना आपका वेट बढ़ेगा, तभी ना आप चंगा रहोगे, हाँ, आप पढ़ाई कर सकोगे, आप नौकरी के लिए जा पाओगे। तो ये सब आपको समझाना है। इफ द पेशेंट्स, इफ द चिल्ड्रन, इफ द एडोलेसेंट्स डोंट अंडरस्टैंड कि ये सेकेंड बार में लेस देन 1000 हुआ, तो काउंसलर थोड़ी खुश हो गई, लेकिन किस लिए वो खुश हुई, ये आपको पेशेंट्स से शेयर करना है, ठीक है। काफी सारे पेशेंट्स आते हैं कि वायरल लोड है क्या, ये ही समझ में नहीं आया है, ठीक है। काफी सारे रेफरल्स ऐसे आते हैं जो पेशेंट्स को समझ, लाइक दे हैवंट बीन टोल्ड कि हाई वायरल लोड है क्या, क्यों आपको भेज रहे हैं, रेफर कर रहे हैं सीओई में, ये पेशेंट्स को समझना है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, they will not try to be like poor adherent ones if they understand the importance of ART. Now, if the viral load is failing consecutively, we will give a send an e-referral for SACID. Of HIV viral load results, here we have the red, yellow, and the green signals as we have in traffic. I will start with the undetectable one. The green one is a good one, zero transmission to the sexual partners, minimum risk of mother to child transmission. तो ग्रीन का मतलब है कि पेशेंट अच्छा है, उसका वायरस तो मशीन ने देखा ही, सो अनडिटेक्टेबल है। तो इन द TND पेशेंट्स एज वी कॉल इट, टारगेट नॉट डिटेक्टेड, इसमें रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इज लो। तो अगर, लेकिन फिर भी कॉन्डोम तो यूज करना ही है। बट इफ द यंग कपल इज ईगर टू, वो बच्चे लेना चाहते हैं, तो ये आइडियल टाइम है बच्चा प्लान करने के लिए। और क्योंकि मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन है वो भी कम होगा, एक पार्टनर नेगेटिव है और एक पार्टनर पॉजिटिव है, तो ट्रांसमिशन उनके भी कम होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट मिनिमम होगा। नाउ सप्रेस्ड इज लेस देन 1000, बट इट इज देयर,
ठीक है. So मैंने जो कहा कि the virus is still replicating. It may not be replicating in a huge scale, but it is there. ये क्यों होता है? When the patients are missing few doses, recent treatment initiation or drug resistance. So this can happen in these scenarios कि I have done my viral load less than 6 months, like earlier. So recent ART initiation हुआ है, तो थोड़ा वायरस हो सकता है between 1 to 1000. If it is a drug resistance case, as I said, थोड़ा थोड़ा करके करके दवाई का असर छूट रहा है. यहाँ पे भी शुरू में less than 1000 रहता है. और if the patient is missing low doses. Now unsuppressed is a red signal. वो लाल जो है, like it is giving a red signal and it is an alarm signal. So what is happening is a patient का जो virus है वो तो बहुत सारे एक साथ they are replicating. This is due to missing doses, recent treatment initiation or drug resistance, increased risk of falling ill and or passing virus on to sexual partners or children. तो रहे हैं, और ये भी हो सकता है उनका वो 6 महीना हुआ ही नहीं हो और drug resistance has entered. Now the increased risk of falling ill and or passing virus onto sexual partners or children is also there. Like if we are able to educate our patients कि unsuppressed होने से क्या क्या असर होता है शरीर में, और to people around you, to your children, to your spouse, उनको समझाना है कि unsuppressed का क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, तो शायद वो दवाई लेना शुरू करेंगे. और अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? अनडिटेक्टेबल. दैट इज द TND रिपोर्ट इज आवर अल्टीमेट target. This is a patient-centric differentiated care that we do nowadays. So it's basically one is the system output and one is the patient-related output. We have to motivate our patients, patient outcome. On the other hand, retention improve करना है, effective resource management करना है, and accountability of the healthcare people also has to be there. Sorry. And now coming to the packages we have package A plus, B and C. So package B I'll talk about first. It's a virally suppressed and stable people are in the package B. A package for package B, I'll go to the next page. For package B के लिए, we can give them multi-month because the patients are suppressed. We can give them multi-month ART. वो दवाई 3 महीने के लिए भी दे सकते हैं. Differentiated service delivery कर सकते हैं. आजकल जो one of your neighbors can collect pills for 7 or 8 people in your they can club your ART cards. They can one person will represent others. ये सब कर सकते हैं. Only we can shift our patients to the LAC centers, other OST sites, PI sites, and we can do routine viral load testing at 6 month and 12 month, whichever is applicable. Now I'm going back to the previous slide. This is package B, what I discussed. Okay. Now coming to the package A. Package A is those patients who are within the first 6 months of their ART, and we have to do a viral load testing at 6 months of time. Package A plus is the patients who are advanced HIV disease. Advanced HIV disease are basically, we know that वो CD4 जिनका 200 से कम होता है, all children, all बच्चे 5 साल से कम, और HIV stage 3 and 4 जो है वो सब पैकेज A plus में like they fall in the package A plus. Basically, for advanced disease management, what we do is we go for rapid ART initiation, treatment or prophylaxis for major Y करते हैं, that is package A plus. As we see here in the second column, package A plus is advanced disease management, and as I said, we cannot afford to miss these patients. What we do is we initiate early. बहुत जल्दी ART initiate कर देते हैं इनके लिए. उनका जो भी OIs है वो आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट करना होता है
और बिकॉज वो लेस देन 200 पे है, उनको कोट्राइमोक्साजोल एंड अदर प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट जो भी like is important can be given to them. We do not have a fluconazole prophylactic treatment, but if applicable, we may prescribe. So ये package A plus है. For package A, as I said, I'm shifting between these two slides. For package A, वो जो 6 महीना जिनका पूरा नहीं हुआ, that is the package A. And for them, first we do the preparedness counseling. One thing is very important. एक चीज बहुत important है. काफी लोगों को ये लगता है कि adherence counseling has to be done only after a viral load is done. No. Adherence counseling starts from the day one of preparedness counseling. कोई भी पेशेंट्स को, कोई बंदा को जब आप समझाते हो ना कि दवाई लेना है, लाइफ लॉन्ग लेना है, तभी से शुरू करना है कि क्यों लाइफ लॉन्ग लेना है, लाइफ लॉन्ग नहीं लेने से, प्रॉपरली हर रोज दवाई लेना है, ना लेने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है. सो एट द पॉइंट ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, जब वो प्रिपेयरनेस काउंसलिंग करते हैं ना एआरटी के लिए, तब से शुरू होना है एडहेरेंस काउंसलिंग. बिकॉज अगर आपने उनको समझाया है नहीं, वो तो like you don't expect the patient to follow his or her adherence. like ऐसे भी तो वो स्टिग्मेटाइज होते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस रहता है शुरू शुरू में ना. तो पेशेंट्स को समझाना है कि ये दवाई जो है हम तो शुरू कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये दवाई तभी असर दिखाएगा, तभी like it will be having a good outcome only if you are taking your medicine every day and without skipping even a single day. Or like the quality of life we can give you after ART initiation and after continuing on ART, that can be achieved only after the adherence is good. And now coming to, sorry, the package C. The package C is the package that is a very alert package. All the healthcare workers in the ART centers need to have a very cautious eye on the package C patients. These are the virally unsuppressed patients or the unstable patients. Okay. So they do not have a CD4 greater than 350. They are not taking their medicines on time. Adherence is poor. They are missed patients. Often there are LFU patients who have come back to us. So ये package C वालों के लिए हमारा like नजर ज्यादा होना चाहिए. What we can do usually for overcrowded ART centers, package B patients can be seen by the counselors and they can be released from the center by the pharmacist. But for package C patients, package A and A plus patients, the doctors are essential. So we have only a handful of package C at every RT center. We don't have lots of patients. Okay? So package C के लिए क्या करना है? Like we have हुआ पैकेज सी कि 6 महीने ट्रीटमेंट के बाद भी एक जो वायरल लोड किया था वो हाई आया. ठीक है. सो हाई आने के बाद क्या करना है? 3 सिटिंग्स ऑफ काउंसलिंग करना है. उसके बाद एनहांस जो एडहेरेंस काउंसलिंग वो नोट करना है काउंसलर को. व्हाट वर द फाइंडिंग्स? फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग में जो फाइंडिंग्स आया था, सेकंड काउंसलिंग को उनको एड्रेस करना है कि पहले बार फर्स्ट महीने में जब मैंने आपसे बात किया, पेशेंट्स को ऐसे कहना है कि पिछले महीने में जो मैंने बात किया आपसे, आपने कहा कि ये प्रॉब्लम है आपको दवाई ठीक से लेने का, तो आई हैड सजेस्टेड सम मेजर्स टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. तो इफ यू हैव सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, अगर आपने वो प्रॉब्लम मेरी वाला सलाह जो आपने लिया था ना, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ा? योर सेकंड काउंसलिंग शुड बी लाइक दैट and your third counseling should be a follow-up of your second counseling. Suppose I had told my patient to give an alarm in his mobile. I had told my patients to put a tick mark in his date calendar. So whatever the measures, जो भी मैंने वो उनको ट्राई करने के लिए कहा था ना, मेथड्स, हम ऐसे भी कहते हैं कि आप पूजा करते हैं ना हर रोज, तो आपकी जो पूजा वाला घर है ना, वो उस पूजा वाला घर में आप दवाई का डब्बा रख दीजिए. तब जो पूजा के लिए जब बैठते हैं, थोड़ा पानी लेके, पूजा खत्म हो गया, पानी लेके दवाई ले लिया. तो these are the measures you can suggest to a patient. Okay. And especially this is important for the aged because they tend to forget. बहुत जो उम्र वाली होते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं. और जो एक्टिव पीपल होते हैं इन द मिडिल लाइफ, दे हैव द क्राइसिस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, वो भागदौड़ करते हैं, वो भूल जाते हैं. और वो जो टेंडर यंग एज होते हैं ना, वो स्कूल जाने वाले, वो तो स्कूल जाने आने में ही भूल जाते हैं. तो यू हैव टू एड्रेस ऑल द इश्यूज ऑन अ केस टू केस बेसिस.
Now coming to the patient centric packages, as I'm telling you, the key populations you have to address them. IDU है, syringes, ये सब भी आपको counseling करना है. हाँ, adolescents, children, pregnant women. And one thing that is very important is आपका report TND आया है and you are a IDU patient. तो TND का मतलब ये नहीं है कि IDUs can share their syringes, क्योंकि सिरिंज शेयर करने का मतलब है वो ब्लड ट्रांसमिशन है, एंड ब्लड ट्रांसमिशन कैन बी पॉजिटिव विद आईडीयूज इफ दे आर शेयरिंग देयर सिरिंजेस. तो आईडीयू का काउंसलिंग जो आपने किया कि टीएनडी है आप, ओके ओके यू कैन शेयर योर नीडल्स एंड सिरिंजेस, नो नेवर. that has to be remembered. So this U is equal to U is basically applicable for sexual transmission. Now coming to the package C, management of PLHIV with unsuppressed viral load. आपको तो 3 बार बैठना है, 3 महीने के बाद आपको फिर से वायरल लोड करना है. अगर लाइक एज आई सेड केस टू केस बेसिस पे पेशेंट को कहीं जाना है, वो जल्दबाजी में है, तो ठीक है आप 3 बार बैठिए 15 दिन के अंतर में, 15 दिन बाद आप बैठिए पेशेंट के साथ, और यू कैन डू योर वायरल लोड आफ्टर 2 months. Or if the second viral load is also high, then send a ESASEP referral. As I said, वो आपको individualized approach में patients को देखना है when they are failing, when they are in the package C. Tracking and tracing भी करना है if they are missing their appointments. बेहतर यही होगा कि ये कार्ड्स को ना अब अलग से, वो पैकेज सी वाले को ना इनका व्हाइट कार्ड अब अलग से एक बॉक्स में रख के वो डॉक्टर्स के टेबल पे रख दे, और ये नंबर्स जो है ना, ये नंबर्स थोड़ा लिख के सीसीसी के घर में और काउंसलर के घर में रख दे. तो जब भी ये पेशेंट्स आएंगे तो आपको याद रहेगा कि इनका कार्ड तो डॉक्टर्स रूम में है, क्योंकि ये स्पेशल केसेस हैं. तो this is very important that we understand the importance of talking to the patients, listening to the patients, or unka, like if they are missing their appointments, we have to track these patients as soon as possible. Or advanced disease management, as I said, if the patients are having any stage 3 or 4 illness, that needs to be treated. If any prophylaxis is needed, that has to be given, and ART should not be delayed. Now the stepwise management of PLHIV with an unsuppressed viral load. I'm not reading all the lines, I'm just going with a gist. बेसिकली एक लाइन वायरल लोड का जब रिपोर्ट आ गया ना सेंटर में, एक लाइन लिस्ट बनाना है. लाइन लिस्ट बनाना है कि जिन पेशेंट्स का वायरल लोड सप्रेस नहीं रहा, उनका लाइन लिस्ट बना के वो लाइन लिस्ट आपको काउंसलर, सिस्टर, दीदी और वहां पे डॉक्टर सभी को देना है. ठीक है, दो टू so that it's a very easy hand-on reckoner. सभी को दिखता है कि कौन कौन पेशेंट्स है जिनके साथ हमें ज्यादा टाइम बिताना है. काउंसलर्स इसके बाद वो पेशेंट्स को तो बुलाते हैं, टेलीफोनिकली आपको उसको कॉल करना है. हो सकता है कि आपने 3 महीने का दवाई दिया हो, पेशेंट्स का डेट तो है आगे जाके, बहुत आगे जाके, लेकिन फिर भी पेशेंट को फोन करके बुलाना है. पहले वाला काम जो है काउंसलर का, वो बात करेंगे उनसे, इंटेंसिव सपोर्ट. यू हैव टू लुक इनटू ऑल द इश्यूज. आपको समझाना है पेशेंट को, समझना है पेशेंट्स को, डांटना नहीं है. ठीक है, आफ्टर 3 सेशंस 15 डेज और 1 month, एज आई सेड, उसके बाद हम उनका वायरल लोड करेंगे. ठीक है, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द काउंसलिंग सेशंस जो है वो एक ही काउंसलर को बार बार लेना है. ठीक है, क्यों लेना है? बिकॉज पेशेंट्स ना बार बार एक ही प्रॉब्लम रिपीट करना नहीं चाहते हैं, दोहराना नहीं चाहते हैं. सो इफ द पेशेंट हैज कन्फाइडेड, उन्होंने शायद मुझे कहा है कि हम किसी रिश्तेदार के घर जा गए थे, वहां पे जाने के बाद डब्बा निकलने में मुझे शर्म आया, तो वो बात वो सेकंड टाइम सेकंड काउंसलर को नहीं बताएगा. तो सोशल इश्यूज वट एवर द पेशेंट्स विल नॉट रिपीट. इसीलिए सेम काउंसलर से एडिडेंस काउंसलिंग का स्टेप अप काउंसलिंग करवाना बहुत जरूरी है. अगर द काउंसलर इज एब्सेंट, इन दैट केस अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी डन बाय द फर्स्ट काउंसलर कि ये इशू कैसे रिजॉल्व करेंगे. इट इज इंपॉर्टेंट टू बी डन बाय द सेम काउंसलर. अगेन व्हाई? शायद मैंने कुछ रेमेडीज सजेस्ट किया था पेशेंट को फर्स्ट काउंसलिंग में, तो सेकेंड काउंसलिंग में मुझे याद आ जाएगा क्या क्या रेमेडीज मैंने कहा था. एक स्टूडेंट है, शायद मैंने कहा था कि आप
रात तक नहीं उसको रात तक नहीं, शाम को ले लो दवाई या स्कूल से आने के बाद ले लो दवाई। तो सेकंड काउंसलिंग में जब बच्चा आएगा तो हम स्पेसिफिकली वही क्वेश्चन उनको करेंगे कि आपने दवाई का टाइम बदला है ना। तो टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इशू रेजोल्यूशन, एक ही काउंसलर को तीनों सेशंस लेना है, ठीक है। और अलग से नहीं, हम जो एआरटी कलेक्ट करने का जो डेट्स है उसी पे ले लेंगे। एंड काउंसलिंग के बाद वो काउंसलर्स को एक फॉर्म भरना है। वो फॉर्म में तो सभी डिटेल्स है, उस फॉर्म को रखना है वाइट कार्ड में। अगर नहीं आ पाते हैं पेशेंट्स तो फोन में भी हम कर सकते हैं काउंसलिंग, शुरू तो कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन टेल द पेशेंट कि ठीक है, 3 बार जो स्टेप अप है उसमें शुरू वाला हम फोन में कर लेते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड को आपको आना है। और HIV testing of spouse and partner is important क्योंकि if a patient is failing, the spouse who is negative or the partner who is negative has a high chance of getting positive. So तो जो नेगेटिव स्पाउस है, जो नेगेटिव पार्टनर है, उनका भी ICTC करना है, ठीक है। रिपीट वायरल लोड टेस्टिंग must be done once treatment adherence is more than 95%. Though all efforts should be made to get the appropriate baseline investigations. The best approach is basically we have learned it from our experiences. जब पेशेंट्स शुरू में एक वायरल लोड मिस करते हैं ना, उसी टाइम आपको इन्वेस्टिगेशंस अपडेट करना है, ठीक है, सो दैट इट इज इजी फॉर सैसेट टू गिव अ प्रॉपर रेजिमेन। और दो काउंसलिंग के बाद तीन काउंसलिंग के बाद और 2 वायरल लोड के बाद अगर आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं आया तो आप सैसेप में रेफर कर देंगे पेशेंट को और सैसेप का रिकमेंडेशन फॉलो करेंगे। तो ये सैसेप में जो भेजना है रेफरल, ये 2 दिन में जाना चाहिए। जब सेकेंड वायरल लोड का रिपोर्ट आ गया ना, उसके 2 दिन में रिपोर्ट जाना चाहिए और सैसेप को भी 1 वीक में उनका रिप्लाई देना चाहिए। Now, enhanced adherence counseling or EAC as we call it, 3 sessions as I said, तीन बार बैठना है पेशेंट के साथ, एक ही काउंसलर करेगी और उसके साथ उसको पिल भी देना है सेम सेटिंग में। और सभी फैक्टर्स दिखना है और इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच लेना है, ठीक है। सेशन 1 में जब शुरू का पहला वाला रिपोर्ट मिला है काउंसलर को, तो एडहेरेंस क्या होता है वो भी समझाना है। एक्सप्लेन द वायरल, क्यों आपने बुलाया उनको, क्यों आप बैठ रहे हो आप अलग से, ये भी समझाना है पेशेंट्स को। पेशेंट का जो नॉलेज है ना, दैट हेल्प्स अ लॉट विद द एडहेरेंस। अगर वो समझते नहीं है कि क्यों ART रोज लेना है, तो वो क्यों खाएंगे। हमको तो ये समझाना है पेशेंट्स को ना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एडहेरेंस, उनको उनका नॉलेज जो है एनरिच करना है। व्हाट इज म्यूटेशन, रेजिस्टेंस क्या होता है, आगे जाके आपका दवाई काम नहीं करेगा, इसका जो नेगेटिव असर है वो अभी नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल के बाद आप बीमार पड़ जाओगे, आप बिस्तर पे लेटना पड़ेगा, आप काम नहीं कर पाओगे। हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो काम जाने के लिए वो दवाई छूट जाता है। तो वी कीप टेलिंग देम कि आप जो काम के लिए दवाई मिस कर रहे हो ना, ये काम करने के लायक ही नहीं रहोगे आप, ये थोड़ी ना कोई चाहता है, ठीक है। सो ट्राई नॉलेज ऑफ द ड्रग, इट्स टाइमिंग, साइड इफेक्ट्स कुछ होता है कि नहीं, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्रेशन एंड अदर रीजंस। स्टिग्मा के साथ लड़ाई करना पड़ता है पेशेंट्स को, तो वो डिप्रेशन थोड़ा समझाना है आपको कि ये इसको भी कैसे आप रूल आउट करोगे। यू टॉक टू योर पियर्स, द पीपल अराउंड यू आर टेकिंग मेडिसिन, यू टॉक टू देम। पेशेंट्स को कहो कि आप जब ART सेंटर में वेट करते हो ना, आप आसपास वाले पेशेंट से बात कीजिए। यू कैन ऑल्सो टॉक टू योर CCC एंड दे कैन हेल्प यू विद देयर इश्यूज। सेशन 2, 15 days और 1 month, यू हैव टू स्पेसिफिकली आस्क द पेशेंट कि पहले बार जो हमने इश्यूज, जो गैप्स के जो रीजंस बताया ना आपने, उसका मैंने कुछ हल भी बताया, तो हाउ हैव यू प्रोसीडेड विद दोज इश्यूज। And the session 3 is basically the first and second issues have been, I have listened to my patient's issues. Now is the time to address the outcome of those gaps. Okay, like how I have identified the outcome gaps, and जो मैंने जो सलाह दिया पेशेंट्स को, उन सलाह को like has he been able to follow it, ठीक है।
तो इसके बाद आफ्टर द रिपीट वायरल लोड, इफ द रिजल्ट इज लेस देन और इक्वल टू 1000, आई विल अप्रिशिएट, आई विल encourage द पेशेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और द पेशेंट विल कंटिन्यू द करंट रेजिमेन। अगर वायरल लोड फिर से ज्यादा आया तो सैसेप में रेफरल कर देंगे 2 दिन के अंदर, और साइमल्टेनियसली ऑल्सो पेशेंट्स को कहेंगे मल्टी मंथ नहीं देंगे इस टाइम पे, एंड दे हैव टू कम बैक टू द ART सेंटर for the SASEP recommendation and advice. We have a ESC checklist. This is a form which is available with all the counselors. And now NACO is telling that when you are referring your patient to the COEs for virological failure, you have to ये फॉर्म भी आपको भेजना है। फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन और थर्ड सेशन में काउंसलर को क्या क्या पॉइंट्स मिली, जहाँ पे पेशेंट का गैप हो रहा है, उसने वो पॉइंट्स का क्या क्या सॉल्व या हल ढूंढा और क्या क्या एडवाइस दिया, ये तीनों सेशन का फॉर्म अभी जाना है पेशेंट का पेशेंट रेफरल के साथ। This is a form in details. And now we have, in the first session, we talk about does the patient have adequate knowledge? But in the second and the third sessions, we don't talk about knowledge because we expect that by the first session, the knowledge has been important. जो भी नॉलेजेबल जो पेशेंट को जो जो जानकारी है ना, वो जानकारी पहले सेशन में दे देना है, और सेकंड एंड फॉलो अप, थर्ड विल बी द फॉलो अप ऑफ व्हाट, बेसिकली जो 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 स्ट्रैटेजी हमने लिया था, ठीक है, अलार्म देने वाला, कोई भी टाइमिंग वाला, ठीक है, और स्टिग्मा कैसे रिड्यूस करेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे, वो जो कहते हैं कि हम जब काम पे जाते हैं तो शायद वो बारिश वारिश का दिन हो तो काम से वापस घर नहीं आ पाए, वहीं पे सो गए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ठीक है, आजकल तो बहुत सारे डब्बे मिलते हैं प्लास्टिक वाले, तो किसी डब्बे में आप 2 दिन का दवाई रख के वो बैग के नीचे रख दो। जब भी ऐसा 1-2 दिन जो आता है ना महीने में, तो वह उस टाइम आपको दवाई मिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास दवाई होगा। बहुत यंग एडल्ट्स है ना, वो दोस्त के घर गए, कोई शादी वादी में घूमने गए तो वहां पे रह गए, इट wasn't a planned stay, तो these have to be addressed like individually। तो आप उनको सजेस्ट करेंगे कि एक छोटा सा डब्बा में दवाई रख के वो बैग में आप फेंक के रखना, ठीक है। यू विल नॉट टेक देम एवरी डे, बट जब भी जरूरी होगा तो आप वहां से ले लेंगे, और 2-3 महीने के बाद आप वो उसको रिप्लेस कर देंगे सो दैट इट डजंट एक्सपायर। एक स्टडी हुआ था JJCOE में मुंबई में, तो विथ नारी, एंड उन्होंने देखा कि उनका जो 30 पेशेंट्स वो थर्ड लाइन खा रहे थे, ठीक है, एंड और कुछ सेकेंड लाइन भी खा रहे थे, 30 पेशेंट्स। उन 30 पेशेंट्स का जब उन्होंने ड्रग रेजिस्टेंस स्टडी किया तो देखा कि उनका जो जाइडोव्यूडिन, लैमिव्यूडिन, नेविरापिन, इफाविरिन, सभी दवाई का उनका लाइक दे वर सेंसिटिव, सभी दवाई काम कर सकती थी, लेकिन बेकार बेकार उनको फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन किया गया। ये हेल्थ केयर वर्कर का प्रॉब्लम नहीं था, बेसिकली प्रॉब्लम था कि पेशेंट्स का एडहेरेंस इतना पुअर था, वी कुडंट पिक अप दैट इशू, इट वाज आवर गैप कि हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, ठीक से एड्रेस नहीं किया, ठीक है, और बेकार वो पेशेंट्स फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन चेंज हो गए, सेकेंड लाइन से रैपिड थर्ड लाइन भी हो गए, जहां उनका सभी ड्रग सेंसिटिव है, एंड दे कुड हैव बीन वेल केप्ट ऑन देयर फर्स्ट लाइन ART। द कैस्केड मॉनिटरिंग भी करना है, वायरल लोड इफ इट इज सपोज वी आर डूइंग इट फॉर 15,000 पीपल, इफ इट इज मोर देन 1,000 फेलियर केसेस, सो एडहेरेंस काउंसलिंग तो 70% का ही हुआ है, बाकी 30% का तो हुआ ही नहीं एडहेरेंस काउंसलिंग, ऐसे ही मैंने उनको सैसेप में भेज दिया। अगर हम सैसेप में भेजने के पहले एडहेरेंस काउंसलिंग प्रॉपरली करते ना, तो ये जो वायरल लोड जो मोर देन 1,000 है, ये कम होते होते 28% हो जाता 100% से, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, वन मेजोरिटी ऑफ 30% एंड हियर 29%, इनका प्रॉपरली स्टेप अप काउंसलिंग हुआ ही नहीं, इसीलिए इसका प्रॉपरली फॉलो अप टेस्ट नॉट डन। तो ये जो पेशेंट्स है ना 41% हो जाते हैं बाद में जाके, तो ये रेफर भी नहीं होते हैं, ये सस्टेन हाई वायरल लोड में रह जाते हैं। सो दिस कैस्केड इज शोइंग कि कैसे हम प्रॉपरली काउंसलिंग करते करते ना, वो जो 15,000 प्लस थे वायरल लोड हाई पे, उनको हम लाइक वी कैन रिड्यूस इट टू 1,100 approximately. So what are the steps? As I said, session 1, address the issues, identify the issues. Session 2, identify the
resolve methods which have been adopted. सेशन 1 में आपको सुनना है, पेशेंट को अच्छी तरह से सुनना है, कारण क्या था। सेशन 2 में आपने जो सेशन 1 में सुना था, जो आपने सलाह दी थी, वो का उसको कितना पेशेंट फॉलो कर पाई। और सेशन 3 में पहले 2 विजिट का जो जो भी बातें हुई वो आप कहेंगे। अगर उसको दवाई अभी वो ठीक से ले रहे हैं ना, तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, उसको एनकरेज करेंगे, और जो भी थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो प्लान वाला दवाई लेने का वो कर देंगे, और उसके बाद वायरल लोड कर लेंगे। और after the viral load is done, if it is low, appreciate, encourage; if it is high, refer. U is equal to U, as I said. Undetectable means that your virus is too low in their blood. And if you take your ART daily and maintain an undetectable viral load, you will not pass HIV to your partners through sex. This is very important nowadays because there are lots of people, and HIV is basically it's not a ये ऐसा बीमारी तो नहीं है कि आज डिटेक्ट हुआ कल हम मर जाएंगे. Now, with the advent of good drugs, people are living with HIV. They are having a long life with HIV. So naturally, people will plan children. So आपको ये भी लाइक काउंसिल करना है पेशेंट्स को कि आप दवाई ठीक से लेंगे ना, तो आपका स्पाउस भी अच्छा रहेगी, और आपको जो बच्चे होंगे ना वो भी नेगेटिव रहेंगे. बट point to be noted is U is equal to U is not applicable for IDU or the drug users. इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम needle और syringe share करेंगे. I come to the end of my session. I think I am already over time. Thank you. जो भी questions है, you can put it in the chat box. Thank you so much, ma'am, for the wonderful session. I hope my Hindi was it was excellent, understandable. ma'am. No, it was excellent, ma'am. Thank you. Thank you. Any questions from participants? Step up adherence के बारे में, enhanced adherence counseling, SASEP, कोई भी सवाल हो प्लीज पूछिए. If you want to talk to COE, I am always there. Okay, so if there are no questions at the present, all the counselors, all the ART staff, they are welcome to write to COE at coestm1@gmail.com. Okay, you can talk to us over our EPAN numbers also, and we are there to assist you. Thank you, Sweta. Thank you so much, ma'am. Thank you so much to all the participants for patient listening. We'll conclude the session. Thank you, ma'am. Thank you.